मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि बा आस्तिक कहेंगे। तो आजकेर जे महावाक्य तार संगे यदि आमरा एकात्म हई ताहले तार मूल धारणाटा आमादेर बुद्धिरूपी बर्तने आमादेर बसते हबे। तार जन्य बाबा बोलछे जे तुम्हादेर अनेक बड़ टाइटेल तोमरा प्राप्त करछो, सारा दुनिया जखन अज्ञान अंधकारे जखन डुबे आछे, जखन निर्बुद्ध ज्ञान नेत्रहीन मायार टाइटेल निये जखन भक्ति के जखन आंकड़े धरेছে ताराई तुम्हादेरके एखन बोलছে তোমরা नास्तिक। और स्वयं भगवान एसे बोलছে ना, তোমরা যখন এই সঠিক সময়ে যখন পারলৌকিক পিতাকে চিনেছো, ওনার নামকে জেনেছো, ওনার রূপকে জেনেছো, ওনার ধামকে জেনেছো, ওনার কর্তব্যকে জেনেছো, ওনার সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে জেনেছো, ওনার সঙ্গে কি করে সম্পর্ক করতে হয় এটা যখন জেনেছো, তো তোমার শ্রেষ্ঠ টাইটেল আমি দিচ্ছি, তুমি হলে আস্তিক প্রীত বুদ্ধি আস্তিক আত্মা। কারণ তুমি চিনে নিয়েছো নিজেকে, চিনে নিয়েছো ঘরকে এবং চিনে নিয়েছো পিতাকে, পিতার কর্তব্যকে। তো এইভাবে যদি আমরা একাত্ম হই প্রত্যেক দিন মুরলীর মহাবাক্যে, যেটা আমার জন্যই মুরলী, আমি সেই প্রেত বুদ্ধি আত্মা, আমি সেই आस्तिक आत्मा। तो आजकेर मुरली तो बाबार से टाइटेल के वरदान मने करे, शक्ति मने करे, खुशी मने करे यदि पुरो मुरलीटा आमरा अनुभव करी ताहले खुशीते आमरा गदगद हये যাব। आजकेर मुरली थेके प्रश्न, बाप किस कर्तव्य से बाप किस कर्तव्य से बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है। तो बाबार देवा टाइटेल आमी प्रीत बुद्धि आस्तिक आत्मा। तार संगे बाबा ये प्रश्ने बोलছে যে সারা দুনিয়া এখন ভক্তের ছড়াছড়ি। तो নিজেকে যদি আমি ভক্ত টাইটেল দেই এবং বহু ভক্তি যদি আমি করে থাকি, ভক্তির অনুভব যদি আমার থাকে, তাহলে বাবা বলছে তোমাকে আমি রক্ষাও করি। তো বাবার কি এমন কর্তব্য যেটা আমাদের, যার প্রতি আমাদের একাত্ম হতে হবে, বাবার কর্তব্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা থাকতে হবে, তাহলেই আমরা ভক্ত আত্মারাও অন্তিম সময়ে আমরা রক্ষা পেয়ে যাব। দুনিয়াতে এত হানাহানি চলছে, দুনিয়াতে এত রকম, তো যে আমাদের সুখ শান্তিতে থাকার অযোগ্য দুনিয়াটা হয়ে গেছে, তার মধ্য থেকে বাবা বলছে তোমাদেরকে আমি রক্ষা করব। যদা যদা হি ধর্মস্য, বাবাই তো বলেছেন। তো আজকে কি কর্তব্য ফুটে উঠছে এখানে, उत्तरे बाबा बोलছেন सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना
सब भक्तों को रावण की जल से छुड़ाना, इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यो एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। ध्यान दिए यदि আমরা দেখি তাহলে বাবার এই মহাবাক্যের মধ্যে স্পষ্ট হচ্ছে যে বাবার কর্তব্য। প্রথম বাবা বলছে যে আমি রাবণের জেল থেকে, আমাদের যে বিভিন্ন প্রকারের যে মায়ার আকর্ষণ, বিভিন্ন ধরনের বিকার, স্থূল হোক আর সূক্ষ্ম হোক, এটা হলো রাবণের জেল। তার থেকে বাবা আমাদেরকে ছড়াচ্ছেন। আর বাবা আমাদেরকে নির্বুধ থেকে সুবুদ্ধি সম্পন্ন বানাচ্ছেন। যে আমরা কপর্দব শূন্য হয়ে গিয়েছিলাম মনে, ধনে, তনে, তার থেকে বাবা আমাদেরকে উপযুক্ত বানাচ্ছেন, অযোগ্য থেকে যোগ্য বানাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত বাবা আমাদেরকে দেবতা বানাচ্ছেন। এক, অযোগ্য থেকে যোগ্য, দ্বিতীয়ত দেবতা আমাদের বানাচ্ছেন, দ্বিতীয় কর্তব্য। আর সকলকে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি আমাদেরকে প্রদান করছেন। এই তিন কর্তব্য থেকে প্রমাণ হয় যে বাবা আমাদের রক্ষক। এতদিন যে আমরা শাস্ত্র পাঠ, দান, পুণ্য, জপ, তপ, ভক্তি, তীর্থযাত্রা যা কিছু করেছি, যজ্ঞ, আহুতি, তো বাবা বলছে তাতে তোমরা প্রমাণিত হয়েছ ভক্ত। আর তাই বলে এখন আমি তোমাদেরকে তিনভাবে রক্ষা করছি। এক, অযোগ্য থেকে যোগ্য, দ্বিতীয়ত মনুষ্য থেকে দেবতা, তৃতীয়ত তোমাদেরকে আমি মুক্তি, জীবন মুক্তি দিতে এসেছি। তো এক হলাম আমরা আস্তিক, দ্বিতীয় হলো বাবা আমাদের রক্ষক, আর তৃতীয় আজকের গীতে বাবা বলছেন ভোলেনাথ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। আজকে যদি আমাদের কোনো রকম মানসিক, শারীরিক কোনো রকম অসুখ হয় তো আমরা কোথায় যাই? বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যাই। হাত খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক করে দাও, পা খারাপ হয়ে গেছে, শরীরের যে কোনো অঙ্গ যদি খারাপ হয়ে যায় তো আমরা স্পেশালিস্ট, সুপার স্পেশালিস্টের কাছে যাই। এখন মায়া রাবণ যে আমাদের আত্মাকে খারাপ করে দিয়েছে, আত্মাকে বিগড়ে দিয়েছে, যখন তখন আমরা রেগে যাই, যখন তখন আমাদের লোভ আসে, ক্রোধ বলে তো লাভ নেই। তো এই বিভিন্ন প্রকারের যে নির্বোধতা আমাদের মধ্যে আসে, তো বাবা বলছে কি যে ভোলানাথ সে নিরালা কই নেহি, বিগড়ি কো বানানে वाला দুনিয়া মে কই নেহি। চারিদিকে তুমি ঘুরে দেখো, কেউ তোমাকে এই আত্মার বিগড়ে যাওয়া অবস্থাকে, এই আত্মার সাতগুণকে কেউ দিতে পারবে না, কারো কাছে নাই সেই প্রযুক্তি।
तो एकात्म हुआ कि नहीं हुआ? एकात्म होना है। आज का मुरली हमारे लिए है। बाबा हमें आस्तिक टाइटल दिया। बाबा हमारा रक्षक है 3 रूप से। एक तो बाबा हमें अयोग्य के योग्य बानिয়েছে, बाबा আমাকে দেবতা বানাচ্ছে, বাবা আমাকে মুক্তি জীবন মুক্তি দিচ্ছে। আর যে আমি बिगड़ গেছি माया रावणের प्रजुक्तिते, ये बिगड़ी के सुधारने वाला बाबा आया है। बाबा को पहचानना, बाबा कौन है, नाम क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, कर्तव्य क्या है। तखनी बाबा बोलছে কি ये তুমি যে আমি টাইটেল দিয়েছি, তুমি প্রীত বুদ্ধি আস্তিক আত্মা, তবেই তুমি परमात्मार संगे তুমি একাত্ম থাকতে পারবে। ओम शांति। यो किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? ओम शांति तो किसका महिमा है? तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाबा कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता। वही इस सारी रचना का रचयिता है। सारी रचना का रचयिता एक बाप है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है, अपना घर में जो फादर है मदर है वो रचयिता है, हम सब रचना है। पहले संसार में क्या होता है, कन्या को कोई अचाना कोनो कन्या के स्त्री बनिए नेওয়া হয়, स्त्री बनाते हैं, फिर तो उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चों को पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। এইভাবে লৌকিক দুনিয়াও চলছে। এটা হলো ম্যান মেড, মানুষের প্রযুক্তিতে সংসার বিস্তারের নমুনা, যে माया रावण আমাদেরকে শিখিয়েছে। तो बाबा बोलছে तो उनको कहा जाएगा रचना संसार का। बाप ठहरा रचयिता, सुपर स्पेशलिस्ट। तो बाप का क्या है? तो वो हद के रचयिता ठहरा है संसार में। अचाना कन्या के स्त्री बनिए तो ताके दिए रचना करा है 5-7 बच्चा। तो यो भी बच्चे जानते हैं, तो रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। बाबा हमारे के रचना करेছেন। मनुष्य को तो 2 बाप होती ही है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है बच्चे ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर ज्ञान मिलने से क्या होता है? भक्ति तो किया, टाइटल मिला, तुम आस्तिक हो। फिर घर जाने से पहले हमें क्या आना चाहिए? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। मुख से नहीं, दिल से हमारा वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो ना, गुड फील करे। এই সময় যখন দুনিয়াতে রাহাজানি, অত্যাচার, অবিচার, তো আমরা তখন দুনিয়ার মানুষ যখন কলিযুগে বসে আছে, তো বাবা বলছে তোমরা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে সুবোধ হয়ে বাবার কোলে বসে আছো संगम युगे। तो है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। वो है शिव, वो है परमधाम निवासी, हमारा पिता है, हमारा शिक्षक है, हमारा सदगुरु है। लौकिक बाप होते हैं तो उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप होते हुए भी लौकिक बापेर थेके धन सम्पद प्राप्त है, सोना गयना प्राप्त है, जायगा जमी प्राप्त है, तारपरो आमरा पारलौकिक पिता के स्मरण करी। केन? आमरा दुखे आछि। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं जब हम द्वापर युग में आते हैं।
तो यहाँ तुम्हें पराया जाता है। पराया जाता माना बहुत ध्यान देने का बात है। बाबा कहते हैं एखाने तुम्हादेरके पढ़ाशोना कराচ্ছি, पुनराय तुम्हादेरके भक्त बनाচ্ছি ना, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। दो विषयेर जन्य बाबा आमादेरके एखाने डेकेছেন इंद्र सभाয়। एक, आमादेर पढ़ाशोना करते हबे, पढ़ाशोना करले बुद्धिर पात्र आमादेर शोनार मतो हबे। और द्वितीयत माया रावण जे आमादेरके निर्बुध बानिয়েছে, तो बाबा आमादेरके बोझदार बानाচ্ছে। तुमी निर्णय करो तुम्हार जीवनटाके निये तुमी कि सत्ययुगे जेते चाओ नाकि तुमी बार बार कलिजुगे तुमी जन्म निते चाओ। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को जानते नहीं है, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर क्या कह देते हैं? फिर क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। तो कि करे हमरा सम्पत्ति प्राप्त करब? पत्थर में भगवान है, कौन कौन में भगवान है, कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। तो परमात्मा बाप को गालियाँ देने लग पड़ते हैं। तो तुम बाप के बच्चे बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तो प्रथम बाबा बोलছে তোমাদের तो बुद्धि जेटा এখন মেনে নিচ্ছে যে না আমার পিতা এত শ্রেষ্ঠ এত মহান, তিনি সর্বব্যাপী হতেই পারেন না। তিনি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসেন, নির্দিষ্ট নাম রূপ কর্তব্য সব কিছু আছে, किंतु मन बुद्धि आमार एकाग्र करते हबे। तबेई बाबा बोले कि तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि होगा, बाकी सबके साथ तो विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो सामने क्या है? महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सामने महाभारी लड़ाई है। पुराना दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलियुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सत्ययुगी पावन दुनिया स्थापन होनी है। तार जन्यई तो आमादेरके बाबा एकत्रित करेছেন इंद्र सभाते, आमादेरके बसिয়েছেন। तो जिसको ही याद करते हैं हे पतित पावन आओ, वो हमारा सम्मुख आया टीचर बन करके। तो हे खिबाया, हे माझी, हमको इस विषय बैतरणी सागर से निकल क्षीर सागर में ले जाओ। कारा গিয়েছিল? আমরাই ভক্ত হয়ে গিয়েছি। হে মাঝি, আমাদেরকে পারাপার করো। তা নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গান আমরা বানিয়েছি। গান্ধীজিও গান বানিয়েছে। গান্ধীজি भी गाते थे पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजाराम। किन्तु बाबा बोलছে যে गांधीजी देहधारी হওয়ার कारण तो এটা কার্যকর হয়নি। हे सीता, हे राम, सब सीताओं को पावन बनाओ। हे राम, कौन सा राम? तो बाबा कहते हैं तुम इस समय आस्तिक हो, तुम समझते हो वो निराकार बाप है। बाप है राम, हम सब सीताएं हैं, हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं। तो तुम सब हो सीताएं, भक्तियाँ हो, तो वो है भगवान, वो सब उनको पुकारते हैं। तो वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो तुमको कहाँ भी धक्के खाने जाना नहीं पड़ता। भक्ति तो एटाई विश्वास छिलो, যত যজ্ঞ জপ তপ করব, তীর্থ যাত্রা করব, দান পুণ্য করব, তাহলে তো আমার কি হবে? মোক্ষ হয়ে যাবে, মুক্তি হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে তার জন্য কত ধাক্কা খেয়েছে। এখানে তুমি তোমাকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছি, किंतु तुम्हें एकटाও धक्का खाबे ना। ऐसे नहीं कहेंगे तीर्थ पर जाओ, बाबा नहीं कहेंगे कुंभ का मेले पर जाओ, नहीं। ये नदिया कोई पतित पावन ही नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदिया को कोई याद नहीं करते हैं। इस समय तुम आत्मा, इस समय तुम मेरे बच्चे, इस समय तुम ज्ञान नदिया हो। सागर के केन आमरा स्मरण करब? सागर तो सत्ययुग থেকে ছিল, एखोनो আছে। तो पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा, हमको पावन बनाओ। तो बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वो थोड़ी ही पतित पावन है।
तो पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वो जब आए तब आकर पावन बनाए किसको? हमारी आत्मा को, जो बिगड़ गए हैं। तो भारत की महिमा भी बहुत है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। এই ভারতেই ভগবান অবতরণ করেন আর তার जयंतीও এখানে পালিত হয়। शतयुग तो है पावन दुनिया, तो उससे देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। चंद्रवंशियों को 2 कला कम कर देंगे, 14 कला कहेंगे। फिर क्या हुआ? बाबा कहते हैं कहानी रूप में समझो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे उतरते आए हो। এইভাবে আমাদের কলা কম হয়, এখন আমাদের শূন্য কলা। तो এই জন্য কলিযুগকে বলা হয় आयरन एज। बाप आकर सेकंड में श्री चराए हमें शांति धाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए श्री उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। যেমন बाबा रेजल्ट हिसाब बोलছেন तो ब्रह्मा बाबा मम्मा दोनों ने 84 जन्म एक्यूरेट लिया है। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई है। परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया तो यह दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब मनुष्य बिगड़ गया तो बाबा आकर के कहते हैं मैं वही सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, तुम्हें रक्षा करने आया हूँ। तो अपना परिचय देते हैं। अब देखो तो ये बच्चे और बच्चियाँ दोनों बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते संसार का नियम क्या हुआ? तो संसार का नियम तो बाबा कहते हैं दुनिया ने बनाया भाई और बहन। तो बच्चा होने के नाते छेले होलेও আমরা বাবাকে বাবা বলি, মেয়ে হলেও বাবাকে বাবা বলি। दुनिया तो बोले, किंतु बाबा बोले गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। मेरा बोले ना जे আমরা बालिका, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धने रे। আমরাই গিয়ে এসেছি, তো আমরা ভাই বোন কোথা থেকে হলাম? তো আমাদের পবিত্র সম্পর্ক তো भाई भाई है ना। আমরাই বলেছি, আমরাই ভুলে গেছি। तो तुम्हारी इस राजयोग सीखने से सुख धनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आए ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा 21 जन्म के लिए प्राप्त करने। तो अब शिव जयंती भी भारत में मनाए जाते हैं। रावण भी भारत में दिखाई देते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते। शिव सिर्फ शिव की पूजा करते हैं लिंगो बनिए। अब सारा झार तम प्रदान हो जाता है, तब बाप आते हैं। এত কিছু করার পরে যখন একেবারে আমরা অধঃপতনে গেছি, তখন প্রথমে অব্যভিচারী পূজা শুরু করেছে শিবের লিঙ্গ বানিয়ে। উন্নতি কি আমাদের হয়েছে? না, धीरे धीरे आरो अवनति। देहदारीদের पूजा करेছি। तो नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? पहले तुमने स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग करके तुम ही नरकवासी बन गए हो। तो कौन हमको रक्षा करेगा? बाबा। पूरा निश्चय है ना। इसलिए तो बाबा हेडलाइन में बोला है प्रीत बुद्धि अस्तिक आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम नरकवासी बने हो, विचारे बुद्धिते चाल चलने सब किछु आमादेर तो अवनति हयेछे। अब मैं तुमको राजयोग सिखा करके मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात दुर्दिन भक्ति करेছি, कोनो ठिकाना पाइनी।
ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी दिन में जाते हो। तो इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, महाभारी विनाश सामने खड़ा है, बेहद तो महाभारत लड़ाई है। बराबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा, हमारे लिए रहने का स्थान होगा। सोचिए, एक का बात बाबा कहते तुम्हारी जीवन का कहानी है, यही सर्वोच्च तो शास्त्र शिरोमणि गीता है तुम्हारे जीवनेर गान। तो अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाप के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तो अपने आप से पूछे, बाबा तो बोले से তোমরা বাবার মদদগার হয়, তো আমরা কি তন মন ধন বাবার যজ্ঞে লাগাচ্ছি না কৃপণতা করছি? তো এখানেই আমার ভাগ্য লক হয়ে যায়। তো বাবা বলছে তোমরাই স্থাপনা করছো, যদি এখানে কৃপণতা আসে তো ভাগ্য লক হয়ে যাবে। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाओगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तो यो है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव को कहो व रुद्र कहो, एक ही बात है। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहेंगे, सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। तो यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, यज्ञ रच जाएंगे। क्यों? शांति के लिए, खाना मिले, वर्षा तो रुक जाए, अति वर्षा जाते ना হয়। আসছে আজকেই বর্ষা ঢুকবে কেরলে, ফোরকাস্ট পূর্বাভাস কিছুদিনের মধ্যে এখানেও ঢুকবে। তখন আমরা বলবো যে গরমই ভালো ছিল। तो बाबा बोलছেন तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। तो भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, तार जन्य काज के करबे? भारत मातारा करबे। এই জন্য মাতাদের नाम दिए शिव शक्ति सेना। बंधना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को बंधे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मौत तो सिर पर खड़ा है ना, इसीलिए अब यो एक जन्म पवित्र बनो। इसमें कोई आनाकानी नहीं करो, ये हो गया ये হয়ে গেছে সেই হয়ে গেছে। पवित्रता का अनेक बड़ अर्थ बाबा आमादेरके बोझान। सिर्फ ब्रह्मचर्य नय, आमादेर वचने दृष्टिते चाल चलने रहने सहने पवित्रता। तुम बनो, तुम तम प्रधान से सत्य प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तो यो कोई नई बात नहीं। कल्प 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है, नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। चाई ना करते चाई ना किन्तु हये जाए, ये हलो समयेर। किन्तु आमादेर समय हलो এই সময় संगम युग। तो आमरा समय के यदि खराब बोली, बाबा बोले ना तुम्हादेर बृहस्पतिर दशा, तुम्हादेर जन्य संगम युग, তোমরা কলিযুগ বলে খারাপ কর্ম করছো, এ বলে তুমি পার পাবে না। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। कर्म काके बोले, विकर्म काके बोले, अकर्म काके बोले। तो अब फिर से तुमको मैं समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यो शरीर जिसका आधार मैंने लिया ब्रह्मा का, वो कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता बिल्कुल नहीं कहा जाता। एबार ब्रह्मार प्रतिও যদি আমাদের आसक्ति থাকে তাহলে আমাদের লক্ষ্য ঠিক নয়। আর দেহধারী তো बाद का बात है। कोई धर्मगुरु हो, कोई महात्मा, কেউ যদি महात्मा হয়ে থাকে, धर्मगुरु হয়ে থাকে, गुरु गोसाई, ওনার प्रतिও যদি আমার জীবনটা বাজি রাখি তাহলে এই বাজিতে আমি ঠকে যাব। बाजी मात হবে না। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, तो ऊपर कोई जा नहीं सका। एत भक्ति करे
ऊपरेर नागाल क्यों पाएनी, सभी पतित बनते ही तो बनने का ही रास्ता बनाते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं और दूसरों को भी पतित बनाते जाते हैं। बाप तब बाप कहते हैं तो उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तो यो है रावण राज्य। एटाई जखन समय হয়, তার জন্য অনেক উদাহরণ গরুর পুরাণে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কলিযুগের শেষ সময় কোনটা? যখন 4 ছেলে থেকেও মা বাপ রক্ষা পায় না, খাদ্য পায় না, বস্ত্র পায় না। 4 ছেলে, 4 কুয়াতে যখন 1 কুয়া ভরে না, তো এটাই হলো কলিযুগের अंतिम সময়। এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। तो बाबा कहते हैं तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। তোমাদের নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে, তোমরা আস্তিক টাইটেল পেয়েছো, তোমাদের এখন প্রীত বুদ্ধি বাবার সঙ্গে, আর বাকি দুনিয়ার মানুষ ধীরে ধীরে টের পাবে। ब्राह्मण बनने बिगर से बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकते। তার জন্য আমাদেরকে ব্রহ্মার আচরণ, ব্রহ্মার মতো ত্যাগ, তপস্যা আমাদের করতে হবে। ব্রহ্মার দেখানো পথে আমাদের চলতে হবে, যা বাবা বলেছেন শ্রীমত। तो बाप है ही दो, एक निराकार बाप तो एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है तो एक साकारी बाप से, अपना अपना पिता से, तो साकारी बाप से साकारी बच्चों को, फिर निराकारी बहुत बाप के वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। साकारी वर्षा मिलते हैं, घर मिलता है, मकान मिलता है, जमीन मिलता है, सोना गयना मिलता है। और निराकारी बाबार थेके आमरा आत्मार शुद्धता, आत्मार जे मन बुद्धि ताके सठिक करा, तार कायदा दिन प्रतिदिन बाबा आमादेरके बोझाচ্ছেন। तो कत बड़ टीचार तिनी, कत हाईएस्ट अथॉरिटी, कत सुपर स्पेशलिस्ट। तो अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे बाप से हम 21 जन्मों के लिए क्या लेंगे? शोकधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व का मालिक बनते हैं जोग बल से। तो कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से जोग लगाए, विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी का मालिक बनना है। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहा है, अमर कथा सुन रहा है, अमर लोक में जाने के लिए। और राजयोग सीख करके हम देवी देवता बनेंगे। तो यहाँ सत्ययुग में यहाँ तो अकाले मृत्यु होता है, सत्ययुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा, दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता अपना चित्र को इमर्ज करें। देखो ये पढ़ाई भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। तो ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है बच्चे, दिखाते हैं ना शास्त्र में। विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला, हाथों में शास्त्र दिखाया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूँ। तो तार मध्य समस्त शास्त्रेर ज्ञान एसे जाए, सार एसे जाए। तो मैं ही ज्ञान सागर हूँ, गाती भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो आमादेर अंधकार विनाश होच्छे, अज्ञानता विनाश होच्छे, ज्ञानवान होच्छे। सत्ययुग में अज्ञान होता ही नहीं। वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरात के महल हमारा पास था। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं अभी मिलता है लेकिन कुछ दिन बाद मिलेगा नहीं। इन सलबेन विश्व को सलबेन कौन बनाएंगे? এই যে অযোগ্য ভারত হয়ে গেছে, তাকে যোগ্য কে বানাবে? আপাত দৃষ্টিতে তো আমরা দেখি যে আমরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এই এগানো নয়, আমাদের আত্মা যে বিগড়ে গেছে, সকলের মন মানসিকতা ভাবনা, আমরা আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী হয়ে যাচ্ছি। আর প্রতিবেশী সঙ্গে আমাদের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। এই হলো কলিযুগ। ये बाप का ही काम है, बाप को ही तरस पड़ता है। आमादेर बाच्चादेर की हलो, आमार बाच्चादेर की हलो, तारा कोथाय देवी देवता छिलो, मिलेमिशे संसारके कि सुंदर चालातो, और एखन काट 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 हये गेछे। तो बाबार अनेक दया है। कहते हैं
तो तुमको राजयोग सिखाने आया हो, नर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हो, भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ा करके सुखधाम में ले जाता हो। सारा दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो ब्रह्मा का नाम भी वाला है, प्रजापिता। ब्रह्मा प्रजापिता। और आमी यदि निजेके मने करी आमी मास्टर ब्रह्मा, तो आमिও मास्टर प्रजापिता। আমাকে কি কর্তব্য করার ছিল, কি কর্তব্য আমি করছি। বাবা কাউকে ঠোকে না, বাবা প্রশ্ন দিয়ে দেয় আমাকে কি করার ছিল, আমি কি করছি। तो तुम ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सब कुछ सूत्र तुमने जान लिया, लेकिन करते हो क्या, करते हो कि नहीं करते हो। और कोई रास्ता नहीं है बच्चे पतित से पावन बनने का। याद से ही पाप भस्म होना है। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनते हैं। सठिक सोनार संगे सठिक सोना नकल सोना की करे है, नकल सोना सठिक सोना की करे है। तो सठिक सोना के की करे चांदी तांबा लोहा डालते हैं, नकल हो गेल। और नकल के आগুনে পোড়ালে তার থেকে সব বাদ হয়ে গেল, ঠিক কি না। তো আমরা কি করে নকল থেকে আসল হব, ওই আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে। বাবা मैं तुम्हारा हूँ, আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাকব। तो तुम भी पहले सतप्रधान थे, फिर तुम्हारी में खाद पड़ते पड़ते तुम अभी तम प्रधान बन गए हो। अभी फिर सतप्रधान बनना पड़े, जब तब सत्ययुग में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी देहदारी को याद नहीं करो। प्रथम सूत्र, कोनो देहदारी संगे ज़्यादा तो मोह नहीं रखना। पहला सूत्र, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। दूसरा सूत्र, तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाओगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, विष्णुपुरी छिलो, स्वर्ग छिलो, अब रावणपुरी है। फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर, किंतु आमी कि जाबो कि जाबो ना, এটা আমার উপর নির্ভর। আমি কি দেহধারীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছি মোহ মায়া, নাকি ঘর গৃহস্থ থেকে এক বাবার সঙ্গে যোগ আমার। तो साधु संत आदि सबका उद्धार करने बाबा कहते हैं। देखो कितना गंभीर बात है। साधु संतों के उद्धार करते আমি এসেছি, যারা এখন আমাদেরকে ঠকাচ্ছে। क्लियर बात। बाबा का मुरली में कोई लुकानो कोनो कथा नहीं। যারা সাধু সন্ত আমাদেরকে ঠকাচ্ছে তাদেরকে উদ্ধার করতে আমি এসেছি। तभी कहा जाता जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये भारत की ही बात है। सबका सद्गति दाता एक बाप शिव में, तो रुद्र सब उनके ही नाम है। अमरनाथ बद्रीनाथ उनका ही नाम है। तो अतः नाम रख दिए हैं हम भक्तों ने। तो बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है बच्चे। तो मैं हूँ शिव, तुम शालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। बहुत गंभीर बात बाबा ने कहा। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। तो मास्टर ज्ञान सागर तुम बन जाते हो। কাউকে বোঝানো, তো কাউকে বোঝাতে হলে তো বাচ্চারা কি করে, ফলানা को চাই। তো ফলানা আত্মাও তো এই জ্ঞান পরেই তো মশহুর হয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে। तो बाबा कहते हैं तुम क्यों नहीं बनते हो, तुम्हें भी बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, याद प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठों से श्रेष्ठ बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठों से श्रेष्ठ बनना है, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सच्चा सोना बनाने के लिए सिवाय एक बाप के कोई देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत बुद्धि रखनी है। आज का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव, आत्मिक उन्नति के लिए उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भाव। এটাকে যদি আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করি, গাড়ির হেডলাইট কোথায় থাকে? সামনে। তো বাবা আমাদেরকে হেডলাইট এখানে দিয়েছেন যাতে দেখে শুনে বুঝে আমরা সকল পরিস্থিতি, একটা মানুষ সামনে এসেই তো আমাকে গালি দেয়, পেছন থেকে গালি দিলে তো আমি রাগ করি না। তো সামনে এলো, আমার হেডলাইট আছে, আমি আত্মা, বোঝদার আত্মা, আমি যোগ্য আত্মা, বাবা আমাকে টাইটেল দিয়েছে আমি আস্তিক আত্মা। ওই সময় তখন যদি আমি বাবার মুরলির কোনো পয়েন্টকে আমি সেট করে দেই, তাহলে ওই আত্মা আমার থেকে প্রবঞ্চনা পাওয়ার পরিবর্তে আমার থেকে সুবচন শুনে যাবে, সুদৃষ্টি পেয়ে যাবে। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, তবেই বাবা এখানে বলছে তুমি অকাল মূর্ত আত্মা। এই জন্য আমি এখানে তোমাকে আত্মাকে সেট করে দিয়েছি हेडलाइट। तार अर्थ जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, तो ऐसे आत्मिक उन्नति की भी साधन अपनाओ। तो इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। आमी हेडलाइट एखानेई आछि सर्व परिस्थिति के मुकाबला करार जन्य। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं वो अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर का भान को मिटाते जाओ। मैं देह नहीं हूँ, अकाल मूर्त आत्मा हूँ, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है। आज का स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। कार संगे आमार की हयेछे एटाके यदि बार बार मने आमी दौड़ाई, देहधारीर सामने ना गिয়েও
দেহদারিকে স্মরণ করলাম। তাকে ক্ষমার পরিবর্তে যদি তার কথা বারবার চিন্তা করি, সে আমাকে দুঃখ দিয়েছে, অপমান করেছে, অপদস্থ করেছে, অপবাদ দিয়েছে, তাহলে ফাইনালে আমরা ফেল হয়ে যাব। আজকে মাতেশ্বরীজির ছোট একটা মহাবাক্য, মনুষ্য সাক্ষাৎকার মে कैसे जाते हैं। বাবা আমাদেরকে ক্লিয়ার করে বলেন যে সাক্ষাৎকার কোনো পড়াই নয়, সাক্ষাৎকার হলো একটা সিস্টেম। যেমন আমাদের জন্ম একটা সিস্টেম, মৃত্যু একটা সিস্টেম, সাক্ষাৎকারও একটা সিস্টেম। ধ্যান দিয়ে শুনবেন मातेश्वरीजीर अनेक अनुभवेर कथा। यो जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलोसफी भी बहुत महीन है। यो अंतवाहक शरीर से जाकर तो घुम आते हैं। शरीरटा एखाने पड़े थाके, तार आत्मार संगे जे शरीरेर जोखा একটা অ্যাঞ্জেল বডি থাকে আমাদের, ওই অ্যাঞ্জেল বডিটাই এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসে, এটাকে বলে সাক্ষাৎকার। तो जैसे कोई वाहन जो जैसे कोई बाहर घूमने जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, तो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यो भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाते हैं। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, तो ये भी परमात्मा का काम है साक्षात्कार कराना, जो उनकी रस्सी को खींच, बाबा এইভাবে রশিকে টানে আর অন্তবাহক শরীরটা এখান থেকে উড়ে যায় পাখির মতো। আর তার মধ্যে থাকে दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से उनका साक्षात्कार कराया जाता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारे आत्मा होकर तो सुखपथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं। स्वप्नेर अवस्थाटा की, तखन आमरा किन्तु बॉडी थेके डिटाच हये जाई। स्वप्न माना स्वप्न एटा एटो एकटा, तो आमादेर शरीरेर अचेतनता, शरीरेर कोनो सचेतनता थाके ना, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया, मरे गेले आमरा स्वप्न देखी ता नय। तो फिर जब जागृत हो जाता है तो उस रात के स्वप्नों को अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। माँ बाप को सुनाते हैं बच्चा हो, और घर का कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को सुनाते हैं। तो वैसे परमात्मा का साथ योग लगाने से परमात्मा भी दिव्य दृष्टि से आत्मा को शेयर कराते हैं। यज्ञेर प्रथमे तो ये साक्षात्कार छिलो, ज्ञान किछु छिलो ना। तो बाबा बोलছে कि फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर के आए। तो यो स्वप्नो रजोगुण भी हो सकता है, तमोगुण भी हो सकता है, तो यो ध्यान भी सतोगुणी अवस्था है। तो ध्यान में शरीर कोई मरता नहीं है, मगर शरीर की भाषना गुम हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म अज्ञान करार इंजेक्शन, क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध चली जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड करा देते हैं ना, परंतु और इंद्रियां चलती रहती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर करने जाते हैं, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यो रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में है। তাহলে যদি আমি কোনো দেহধারীর পেছনে পড়ে থাকি, ও আমাকে সাক্ষাৎকার করাবে, এটাও আমাদের ভক্তির এক পর্যায়, এটা জ্ঞানের পর্যায় নয়। তো বাবাই যদি আমার ড্রামাতে সাক্ষাৎকারের পার্ট থেকে থাকে তো বাবা আমার রশ্মি, কিন্তু আমার কাজ হলো কি এক বাবাকে স্মরণ করা, उठते बसते चलते फिरते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो अब यो रस्सी खींचने की
स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त तो इशारा इस महीना का आज 4 तारीख है। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सदा हंसी खुशी, सहनशील बनो। सहनशील होते হবে, सरल बनाते হবে, पेचिला नয়। तार अंतर्गत बाबा बोलছেন सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाई देता है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। बाबार जे ज्ञान बार बार मुरली के पढ़ा, नतुबा जे नोट करे निয়েছি তাকে বারবার চিন্তন করা। और हेडलाइट जे बाबा दिए ता दिए व्यक्ति के नয় परिस्थिति के मुकाबला करा। तो जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं कर सकता। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा যে যদি সরল আমরা থাকি আর সহনশীল আমরা থাকি তাহলে কোনো পরিস্থিতি আমাদের জন্য কোনো পরিস্থিতি নয়। পরিস্থিতি কেটে যাবে। মেঘ এসেছিল, কিছু বর্ষণ করে চলে যাবে, মেঘ থাকবে না। কিন্তু আমার মনে আটকে রাখা পুরানো স্মৃতি এটা কিন্তু অন্তিম সময় আমাকে ফেল করিয়ে দেবে। আজকের সমান मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। हेडलाइट यहाँ है, परिस्थितियों को हमें सुलझाना है, ना कि हमारा मन में रख करके जलते रहना है।